Plot of Man and Superman. George Bernard Shaw's Man and Superman is a play about love, marriage, and the purpose of life. ये ड्रामा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है जो मोहब्बत, शादी और जिंदगी के मकसद पर मबनी है। It blends comedy, philosophy, and romance while challenging traditional ideas. ये हंसी, फलसफा और रोमान को मिलाकर रिवायती ख्यालात को चैलेंज करता है। The story revolves around John Tanner, a free-spirited thinker, and Anne Whitefield, a clever and determined woman. कहानी जॉन टैनर, एक आज़ाद ख्याल शख्स, और एन वाइटफील्ड, एक ज़हीन और मजबूत इरादे वाली औरत के गिर्द घूमती है। The play explores how even the most rebellious individuals cannot escape the forces of love and destiny. ये दिखाती है कि कैसे सबसे ज्यादा बगावत करने वाले इंसान भी मोहब्बत और तकदीर की ताकतों से नहीं बच सकते। The story begins with the death of Anne's father. कहानी एन के वालिद की वफात से शुरू होती है। In his will, he names two guardians for her, Mr. Ramsade, a traditional and conservative man, and John Tanner, an intellectual who questions societal norms. अपनी वसीयत में वो एन के लिए दो सरपरस्त मुकर्रर करता है, मिस्टर रमसुन जो रिवायती और कदामत पसंद आदमी है, और जॉन टैनर जो एक दानिश्वर हैं जो समाजी उसूलों पर सवाल उठाते हैं। Tanner is a strong critic of marriage, calling it a trap. He says, marriage is to me apostasy, profanation of the sanctuary of my soul. टैनर शादी के सख्त नाक़िद हैं और इसे एक जाल कहते हैं। वो कहते हैं, शादी मेरे लिए रूह के मुक़द्दस तरीन हिस्से का तौहीन है। While Mr. Ramsade believes and should follow proper customs, Tanner warns her against the limitations of traditional values. जबकि मिस्टर रमसुन मानते हैं कि एन को रिवायती आदाब पर अमल करना चाहिए, टैनर इसे रिवायती अक़दार की हुदूद से आगाह करते हैं। Anne is not an ordinary woman. She is determined, intelligent, and manipulative in a subtle way. एन कोई मामूली औरत नहीं है। वो पुरअज़्म, ज़हीन और चालाक अंदाज में गुमराह करने वाली है। She decides she wants to marry Tanner, even though Tanner is terrified of the idea. वो फैसला करती है कि वो टैनर से शादी करना चाहती है, हालांकि टैनर इस ख्याल से डरते हैं। He describes Anne as a woman who wants to control him, saying, she wants to enslave me in the bonds of holy matrimony. वो एन को एक ऐसी औरत के तौर पर बयान करता है जो इसे काबू करना चाहती है, और कहता है, वो मुझे शादी के मुकद्दस बंधनों में गुलाम बनाना चाहती है। Meanwhile, Octavius Robinson, a young poet, is deeply in love with Anne. He idealizes her as the perfect woman and dreams of marrying her. Octavius declares, love is the most important thing in the world. इस दौरान ऑक्टूस रॉबिन्सन, एक नौजवान शायर, एन से गहरी मोहब्बत में है। वो इसे एक मुकम्मल औरत के तौर पर सोचता है और इसे शादी करने का ख्वाब देखता है। ऑक्टूस कहता है, मोहब्बत दुनिया की सबसे अहम चीज है। However, Anne sees Octavius as too soft and adoring to be her equal. She prefers Tanner because of his intelligence and rebellious nature. ताहम एन ऑक्टूस को बहुत नर्म और पारस्तुश करने वाला समझती है कि वो इसके बराबर हो। When Tanner realizes Anne's plan, he tries to escape. He travels across Europe, hoping to avoid her. जब टैनर को एन के मंसूबे का पता चलता है तो वो बचने की कोशिश करता है। वो यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में सफ़र करता है ताकि वो एन से बच सके। During his journey in Spain, he is captured by a group of bandits led by Mendoza, a romantic and philosophical man. अपने सफ़र के दौरान स्पेन में वो डाकुओं के एक गिरोह के हाथों गिरफ्तार हो जाता है, जिसका रहनुमा मेंडोजा है, जो एक रोमानवी और फ़लसफ़ी शख्सियत वाला आदमी है। Mendoza shares his thoughts on human nature, saying, we are all savages at heart. Civilization is only a veneer. मेंडोजा इंसान की फितरत पर अपने ख्यालात शेयर करते हुए कहते हैं, हम सब अंदर से वहशी हैं, तहजीब सिर्फ एक सतही चमक है। Tanner enjoys Mendoza's company, and their discussions make him reflect on his beliefs about life. टैनर मेंडोजा की कंपनी का लुत्फ उठाता है और उनकी बातों से वो जिंदगी के बारे में अपने ख्यालात पर गौर करने लगता है। One night, Tanner has a dream called Don Juan in Hell. In the dream, Tanner becomes Don Juan, a famous man known for his charm and love affairs.
एक रात टैनर को एक अजीब और वाज़ेह ख्वाब आता है जिसे डॉन वान इन हेल कहा जाता है। इस ख्वाब में टैनर डॉन जवान बन जाता है जो स्पेन की कहानियों का मशहूर आशिक है। He finds himself in hell, where he talks to three characters, one the devil, who loves fun and says life should be about enjoyment, not rules. He says, वो अपने आप को जहन्नम में पाता है जहां वो 3 किरदारों से मिलता है। एक शैतान जो कहता है कि जिंदगी का मकसद मजे और लज्जत में होना चाहिए ना कि उसूलों और नज़्म-ओ-ज़ब्त में। वो कहता है Hell is the home of honor, duty, justice, and the rest of the 7 deadly virtues. जहन्नम इज्जत फर्ज इंसाफ और बाकी 7 मोहलिक खूबियों का घर है। To Donna Anna, a version of Anne, who talks about the importance of love, marriage, and family. She represents nature's life force, which pushes humans to grow and evolve. डोना एना जो एन का एक रूप है, वो मोहब्बत, शादी और जिंदगी की उन कुव्वतों के बारे में बात करती है जो इंसान की तरक्की को आगे बढ़ाती है। वो फितरत की और जिंदगी की ताकत की नुमाइंदगी करती है जिसे टैनर समझना शुरू कर देता है। 3. The commander's statue, who supports rules, duty, and traditions. 3. कमांडर का मुजस्समा जो रवायत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और इखलाकी जिम्मेदारी की हिमायत करता है। In this dream, Don Juan argues that life's real purpose is to work towards something big and meaningful. ख्वाब में डॉन जवान ये कहता है कि जिंदगी का असल मकसद तरक्की और तख्लीक में हिस्सा डालना है। He says, the true joy in life is being used for a purpose recognized by yourself as a mighty one. वो कहता है, जिंदगी की सच्ची खुशी ये है कि आपको किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसे आप खुद एक अजीम मकसद के तौर पर पहचानें। When Tanner wakes up, he understands that he cannot escape and all the forces of life. He realizes that marriage is not a trap but part of life's natural plan. He says, जब टैनर जागता है तो वो समझ जाता है कि वो एन जिंदगी की कुदरती ताकतों से बच नहीं सकता। वो ये समझता है कि एन अपनी मजबूती और अज़्म के जरिए जिंदगी की ताकत को मुजस्सम करती है। वो कहता है, Life is a force that has made me, and made you, and made everything. I am its instrument. जिंदगी एक ताकत है जिसने मुझे बनाया, तुम्हें बनाया और सब कुछ बनाया। मैं इसका आला हूँ। In the end, Tanner agrees to marry Anne, accepting her strength and determination. आखिरकार टैनर एन से शादी करने पर राजी हो जाता है और इसे अपने बराबर और साथी के तौर पर कबूल करता है। Octavius, heartbroken, focuses on his poetry. Tanner realizes that love, destiny, and progress are all part of life's journey, concluding, man is the instrument of woman's purpose. Through humor and deep ideas, Shaw shows how love and destiny shape human lives, no matter how much we resist them. ऑक्टूसा एन के इंतखाब से दिल टूटने के बाद अपनी शायरी पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला करता है और अपनी आर्ट में सुकून पाता है। टैनर ये समझता है कि मोहब्बत और तकदीर जाल नहीं है बल्कि जिंदगी के बड़े मंसूबे का हिस्सा है। वो नतीजा निकालता है, आदमी औरत के मकसद का आला है। हंसी, फलसफा और ड्रामे के जरिए शाह ये दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा बगावत करने वाले लोग भी मोहब्बत, तकदीर और जिंदगी की कुव्वतों से ढाले जाते हैं।